لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الأعلام الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. وما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیونکہ آج مسجد میں وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اور تقریباً نماز کا وقت بہت نکل چکا ہے. 12-15 وقت کا نماز کا ٹائم ہے. بہرحال ہمارے وقت نکل چکا ہے اور اس کے بعد جو مسلسل میں پوچھنے آ رہے ہیں تو لوگ پہلا رات میں ماتمداری میں اور لوگ سے چھٹے ہوئے ہیں نہیں رکھتے جو بھی ہے اس کے لیے بیت کے لیے تو اللہ کی مجلس کے لیے مجمع کی بیت ہے نہیں کہ بہت بڑا مجمع ہو. بس اتنے ہو کہ بس مجمع کا بڑا کا ذکر ہو اور ہمارے یہاں سے پیار نکلا ہے. بس یہی مجلس کی کامیابی ہے جو مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. آج بالکل معمول کے آج 8 محرم ہو چکی ہے اور آج 8 محرم کی تاریخ تمنائے جناب علی ہے. وہ جوان جس کی تمنا موبائل سفیان لانے کی غالب حضرت علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیونکہ دین اسلام اور لائف اور دین سے اس چیزوں کو الگ کر کے دیکھا بھی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ جو کچھ دین میں ہے وہ سب دینی کی کوششوں کا نتیجہ ہے. ہم آج نماز پڑھ رہے ہیں تو مظلوم کربلا کی شہادت کی لے کے مظلوم کربلا کی نماز تک پہنچائی ہے. آج مسجدوں سے جیسے اللہ اکبر بلند ہو گئی ہے ورنہ 61 ہجری سے پہلے کے اسلام کی حالت یہ تھی کہ حالت نشے کی حالت میں 2 کی 4 شروع کے پڑھا کے اور آدمی کہہ رہا ہے تو اور پڑھا دیں. حاکم شام کی نماز خود کو پڑھا رہا ہے اور امت پڑھ رہی ہے. 714 میں نے آپ کو بتا دیا کہ 17 ہجری میں یہ 13-14 ہجری میں شام فتح ہوا تھا تو ظاہر سی بات ان کو اسلام سے کیا لینا دینا. جو ہندا کے اور ابو سفیان کے بیٹے نے انہیں اسلام بتایا وہی ان کے سامنے اسلام تھا. یہ تو جب معاملے سے جات گئے ہیں انہوں نے خطبہ دیا ہے تب شام والوں کو پتہ چلا ہے کہ اصل جانشین رسول ہے کون اور اسلام کہتے کسے ہیں, اسلام ہوتا کیا ہے, اسلام کے قانون و قاعدے کیا ہے. ورنہ تو اس کی منمانی شریعت چل رہی تھی. جو حالات تھے وہ تو پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہے. دین اسلام اگلا نگرامی جو یہ دین ہے ہمارے پاس اور میں آپ کو تاریخ میں لے چلوں. ایک بحث ہوتی ہوئی کہ عباس کے پاس کوئی علم نہیں تھا جیسا اور لوگوں کے پاس تھا. تو میرے مولا نے ایک دن اخبار میں دکھایا جس نے اعتراض کیا تھا یہ بتاؤ کہ چشمہ جاری ہے اور پانی بہہ رہا ہے, ایک آدمی کچھ دور جا کے اس چشمے کا پانی پی رہا ہے تو کیسا پانی ہوگا. تو کہا مولا ظاہر والا پانی ندی بہ رہی ہے جہاں سے چشمہ جاری ہے کوئی 2 کلومیٹر دور پر پہنچے گا تو اس میں تمام خشو خاشاک گرد و غبار سب کچھ مل جائے گا. وہ آدمی پانی پیے گا اور ایک آدمی جو چشمے کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ جو پانی پیے گا تو بالکل خالص پانی ہوگا, اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہوگی. تو میرے مولا نے فرمایا چھوٹے حضرت نے کہ تجھ کو جو علم ملا ہے وہ اتنے زمانے کے بعد آنے کے بعد معلوم نہیں کہ کتنی چیزیں اس میں شامل کر دی گئی تب تو عالم بنا ہے. اور میں وہاں پہ سے سیراب آ رہا تھا جہاں چشمہ علم جاری تھا. محمد والے محمد جہاں سے چشمہ علم جاری تھا ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے علم سے سیراب ہو گئے تھے. اب عزیزان گرامی جو پچھلی مجلس میں آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ
حضرت کے بارے میں انسان کیا بیان کرے گا؟ وہ علی جس کو اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جس علی نے جب تک کہ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تب تک رسول اسلام نے اعلان اسلام نہ کیا، اور اعلان اسلام کے وقت رسول مولا کائنات کے وسیع و جانشین ہونے کا اعلان کیا، بستر رسالت پہ سو گئے تو مرضیہ پروردگار کے مالک بن کے اٹھے۔ وہ علی جو بدر کے میدان میں آئے تو علمدار لشکر بنائے گئے، اور بدر میں ایک چیز اور ہے، جب یہ لے کے آئے تو انہوں نے بت لے کے آئے تھے تو کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے، تو میرے رسول اللہ نے کہا یہ دیکھو یہ تو خدا کو لے کے آئے کہہ رہے ہیں، وہ پوری تفصیل میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، تو کہا تم ان کے مقابلے میں کیوں نہیں کہتے تو میرے پاس علی ہے تمہارے پاس علی نہیں ہے، کیا کہنے، ہمارے پاس علی نہیں ہمارے پاس علی ہے۔ وہاں علمدار لشکر بنائے گئے، آگے بڑھے تو خندق کے میدان میں، احد کے میدان میں کیا ہوا کہ امیر المومنین کو وہ فضیلت نصیب ہوئی جو کائنات میں کسی جوان کو نصیب نہ ہوئی، اور خندق کے میدان میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین پہ بھاری ہے۔ خیبر کے میدان میں پہنچے تو سب سے پہلا خطاب یہ ملا کہ جب پکارو اس علی کو جو مظہر ہے جائے بات کا، تو اب جو علی کر دے وہی عجیب، جو علی کہہ دے وہی عجیب، جو انسان کے سمجھ میں آ جائے اسے علی نہیں کہا کرتے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وہاں پہ مظہر العجائب سے شروعات ہوئی، جب آئے تو کہا کلالم اس کو دوں گا تو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، خدا رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، جسے خدا رسول دوست رکھے اسے علی کہتے ہیں، جو خدا و رسول کو دوست رکھے اسے علی کہتے ہیں، اور جس سے خدا و رسول محبت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ پڑھے محمد والے محمد۔ پسند کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اب وہ پڑھنے کے لیے تو ابھی بیٹھ جاؤں گا تو 1 گھنٹہ بھر کا معاملہ ہو جائے گا، مگر اتنی سب ہونے کے بعد جب دعوت ذوالعشیرہ سے جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ مولا کائنات کے غدیر میں اعلان پہ ختم ہوا اسلام کا سلسلہ، اور امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں شہادت نصیب ہوئی، غدیر سے لے کے اور وہاں تک جس کے بیٹے حسنین ہو، سردار جوانان جنت، جس کا خود ساقی کوثر ہو، جس کا نبی صاحب محشر ہو، جس کی زوجہ سیدۃ نساء العالمین ہو، جس کے اوپر طہارت کا پہرا بیٹھا ہوا ہو، جس کے جسم پہ حلتہ کی قبا ہو، جس علی کے سر پہ تاج انما ہو، اس علی کے لیے جو کچھ خدا کی خدائی میں تھا سب علی کے حوالے کر دیا، مگر میرے مولا نے علی نے خدا سے کچھ مانگا نہیں، کچھ مانگا نہیں کہ بالے والے یہ مجھے دیتے، جو کچھ دینا تھا وہ خدا عطا کرتا رہا، علی اولاد علی عمل کرتے رہے، اللہ اس کی جزا دیتا رہا، اور علی بے مانگے علی کو سب کچھ ملتا رہا۔ یہ چیز اور یاد کر لیجیے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ کیا قرآن میں جب رسول اللہ آئے تب آیا، یہ تو روایت بتاتی ہے لوح محفوظ میں بہت پہلے لکھا جا چکا تھا۔ اب کیا اہل بیت کی کوئی فضیلت سمجھے گا؟ اللہ نے اہل بیت کو کمالات کو پہلے ہی لوح محفوظ پہ محفوظ کر دیا تھا، یہاں اہل بیت عمل کرتے جاتے تھے، اللہ بیچتا چلا جاتا تھا۔ محمد والے محمد مختصر کر رہا ہوں، اس میرے مولا نے اپنے خدا سے کچھ نہ مانگا، مانگا تو ایک بیٹا مانگا تھا۔ اب سوچ لیجئے، جو علی اپنے خدا سے کچھ نہ مانگے، جس کا سونا بھی اپنی مرضی سے نہ ہو، جس کا جاگنا بھی اپنی مرضی سے نہ ہو، کیونکہ علی جب عام دن کے حالات یہ ہیں کہ پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ علی رات بھر ہم تکبیروں کی صدائیں سنتے رہتے ہیں، شب ہجرت کا جب معاملہ آیا تو علی بستر رسالت میں سو گئے۔ جو آدمی رات بھر جس کے جاگنے کی عادت ہو وہ عادت بدلتی نہیں ہے، وہ سوئے گا نہیں،
اور جس کی رات بھر سونے کی عادت ہو وہ رات بھر جاگ کے کچھ کرے گا نہیں. تو دونوں چیزیں الگ ہیں. مگر یہ علی کا کمال ہے کہ جب خدا کی مرضی ہوگی تو یہ جاگیں گے, جب خدا کی مرضی ہوگی تب سوئیں گے. یہ سونا بھی عام سونا نہیں ہے, بلکہ یہ سونا اتنا کھرا ہے کہ اس کا خریدار عام انسان نہیں ہے, خود صاحب اختیار پروردگار ہے. محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. بلایا اپنا بھائی عقیل کو. میں اکثر عرض کرتا ہوں نوجوانوں ہوش کے ناخن لو علی سے کہ سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہم اگر علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں تو علی کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو دیکھنا پڑے گا. یا امیر المومنین 4 بچوں کے باپ ہیں, جناب شہزادی زینب ام کلثوم اور حسنین علیہ السلام. شہزادی کے بعد اب یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور جب دوسری شادی کرنے کا وقت آیا تو میرے مولا نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا. کہا بھیا عقیل آپ تو نصاب عرب ہیں, یہ کون پوچھ رہا ہے جس کی تلوار رات کے اندھیرے میں نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے. جس علی کی تلوار رات کے اندھیرے میں نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے, وہ علی اپنے بھائی عقیل سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بھیا عقیل میں شادی کرنا چاہتا ہوں. خاندان کی بھی بتا دیا کہ ہر غیر خاندان میں رشتہ بھی نہ کر لینا, رشتہ بھی سوچ سمجھ کرنا, ایسے خاندان میں نہ پیدا کرنا کہ نسل بزدل پیدا ہو جائے. محمد والے محمد پر طاقتور کا مطلب اچھو بھائی نہیں ہے کہ جو راستہ نکل رہا ہے سب کو دھکا دیتے چل رہے ہیں. طاقت کا استعمال وہی ہوتا ہے جہاں استعمال کرنے کا وقت ہے وہاں استعمال کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں باب الہوائے کے پاس کتنی طاقت تھی, کیا کہنے, سبحان اللہ. مگر اپنے آقا کے سامنے ایسا سرنڈر تھے کہ ایک لمحے کے لیے ایک قدم ہی نہ آگے بڑھے ہیں نہ پیچھے کٹ جاتے ہیں. اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. عباس اسی صاحب فضیلت کا نام ہے جو امام حسین کے حکم کا محتاج نہ تھا, بلکہ چشم و ابرو سے اندازہ لگا لیتا تھا کہ میرے مولا کو کیا ضرورت ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. صاحب معرفت ذات کا نام ہے عباس, جس اپنے مولا کو اپنے آقا کے چشم و ابرو کے اشارے سے سمجھ جاتا تھا کہ میرے مولا کو ضرورت کس بات کی ہے. پھر گیا رشتہ, جناب عقیل سے پوچھا کہ بھیا اب وہ چیز عرض کر دوں. اب سب لوگ آگے مطلب بھر کے سننے والے کہ عباس کہ علم کے اوپر جو بحث ہوتی ہے, عباس شجاع بہت تھے, عباس ساری چیزیں تھی, مگر علم کے میدان میں اتنے نہیں تھے. عزیزان گرامی, مولا کائنات جب ولادت ہوئی ہے تو سب سے پہلا عمل جو رسول اللہ نے گود میں لے کے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اپنی زبان علی کے دہن میں دی تھی, اور جتنا علم رسول تھا وہ امیر المومنین کے سینے میں اترا. اور یہی کمل کس کے ساتھ انجام دیا؟ امام حسن کے ساتھ رسول اللہ نے. یہی عمل انجام دیا امام حسین کے ساتھ. مطلب جتنا علم رسول تھا وہ علی کو عطا کیا, حسن کو عطا کیا, حسین کو عطا کیا, اپنی بیٹی سیدہ کو عطا کیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہاں بات جا رہی ہے؟ جس علی کو رسول اپنی زبان چسا دے وہ باب منزل بن جائے. اور عباس اس بزرگ کا نام ہے جس کو کبھی علی اپنی زبان چسا رہے ہیں, کبھی حسن اپنی زبان چسا رہے ہیں, کبھی حسین اپنی زبان چسا رہے ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. عباس کے علم کا دنیا اندازہ کیا لگائے گی کس علم کی کس معراج میں جناب عباس سے جو 3 معصوموں کی زبان چوس کے بچہ بڑا ہوا ہو, نہ اس کی طاقت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے, نہ اس کے صبر کا اندازہ لگا سکتا ہے, نہ اس کے علم کا دنیا اندازہ لگا سکتی ہے. بس چھوٹی سی ایک بات اور آپ کی خدمت میں کر کے بات کو آگے بڑھا دوں. ہمارے آپ کے 10ویں امام امام علی النقی علیہ امام علی النقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, ترکیوں کا لشکر نکل رہا ہے. ابو ہاشم بیٹھے ان کے خاص صحابی تھے میرے مولا کے. کہا ابو ہاشم آؤ, چلو ترکیوں کا لشکر جا رہا ہے, اس سے بات کر ملاقات کریں. اور جب 10ویں امام چلو کہا تو ابو ہاشم ساتھ چل دیا. اس میں ایک سپاہی جا رہا تھا, امام نے اس کو آواز دی, اور جب اس کو آواز دی تو وہ بالکل
देखता रह गया और आ गया, हाथों को बोसा दिया, पैरों को बोसा दिया, इमाम से बातें करता रहा। और तमाम बातें करने के बाद जो वापस होने लगा तो अबू हाशिम ने पूछा कि ये बताओ कि इनके अंदर तुमको क्या खुसूसियत महसूस हुई कि तुम इतना ज़्यादा इनसे मजबूर हो गए, इतना ज़्यादा तुम्हारी निगाह में इनकी इज्जत हो गई। कहने लगा कि ये वो बुजुर्ग है कि अल्लाह ने इसे ताज इमामत पहना के भेजा है। तो कहा तुमको कैसे पता चला, तुम तो तुर्की हो, तुमने तो कभी इनसे मुलाकात की नहीं। कहा इन्होंने मुझे उस नाम से पुकारा था जो नाम मेरे बाप के सिवा किसी को पता ही नहीं था। मोहम्मद वाले ज्यादा जरूरत थी भी नहीं, ये उन्होंने उस नाम से मुझे पुकारा है जो दूसरा नाम मेरा जानता ही नहीं मेरे बाप के अलावा। अब जो मेरा बाप नाम जानता था वो नाम वही बता सकता है जिसे अल्लाह ने इल्म गैब अता किया हो, जिसे इल्म माकाना मा यकून अता किया हो, वही हमारा नाम बता सकता है। इसलिए मैं समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि हमारे वक्त का इमाम है, इसलिए मैं इनकी ताज़ीम कर रहा था। वो चला गया, अबू हाशिम आए, एक दिन फिर पहुंचे और जैसे पहुंचे तो फैजान भाई जो हमारे आपके 10वें इमाम ने उनसे गुफ्तगू किस जबान में की, हिंदी जबान में। क्या कहें, वो अरब का आदमी हिंदी बोल रहे वो समझ ही नहीं पाया। अबू हाशिम ने कहा मौला ये कौन सी जबान, ये किस जबान में गुफ्तगू कर रहा है? कहा अबू हाशिम समझे नहीं, ये हिंदी जबान है और तुम्हारे समझ में आए नहीं। अच्छा आओ हम तुम्हें इस जबान का आलिम बनाए देते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हम तुम्हें इस जबान का आलिम बनाए देते हैं। क्या कहने, वही कंकरी थी, उठा के दहन में रखा और दहन में रखने के बाद कहा अबू हाशिम इसको जरा चूस लो। अब जब अबू हाशिम ने चूसा तो अबू हाशिम कहते हैं कि मैं एक नहीं बल्कि 73 जबानों का आलिम हो गया, उसमें एक हिंदी भी शामिल थी। जरा से मासूम के मुंह से लुआबे दहन से मस हुई कंकरी अगर अबू हाशिम के दहन में चली जाए तो 73 जबानों का आलिम हो जाए। और जिस अब्बास को 3 मासूमों ने अपनी जबान चुसा के बड़ा किया हो, उस अब्बास के इनका अंदाजा दुनिया क्या लगाए। क्रोध बढ़िया पर मोहम्मद एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है, एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है, बच्चों की प्यास है, अब्बास है, अब्बास है। एक मासूम के दहन से मस हुई लुआबे दहन से कंकरी जो आदमी चूस ले तो 73 जबानों का आलिम हो जाए। और जिस अब्बास को 3 मासूमों ने अपनी जबान चुसाई हो उस अब्बास के उनका दुनिया अंदाजा क्या लगाएगा। अगर अल्लाह ने उनके हसनैन के ऊपर ताज इमामत रखा है तो अब्बास को वफाओं का पैगंबर बना कर दुनिया में भेजा है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान ग्रामी, वो अब्बास जिसकी तमन्ना जिस अली ने कुछ नहीं मांगा था अपने खुदा से, उसने एक बेटा मांगा था तो अल्लाह ने भी बेटा वैसा अता किया कि अली देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि जैसी दुआ खुदा से की थी उससे बेहतर अल्लाह ने मुझे अता किया। क्या कहने। और वो अब्बास भी आप सुन रहे थे, जब थोड़ा बड़े हुए तो मौला कायनात ने 2 साल का शिक्षा जब पढ़ाने के लिए बिठा, पिछली मस्जिद में बात हो गुफ्तगू मौलाना कर रहे थे, जैसे कहा वाहिद का इस्लाम खामोश हो गए। जब खामोश हुए तो कहा बेटा आप क्यों नहीं कहते, यानी जो कहो दो। बाबा जिस मुँह से एक कह दिया 2 कहते हुए शर्म महसूस होती है। 2 साल में जिसकी मार्फत की ये मंजिल हो वो बात जब 22 साल 32 साल का जवान हुआ तो मार्फत का मालूम क्या होगा। क्या कहने, वाह। पास हर वक्त आका और मौला कहते फिर रहे हैं। अब वो शादी हो गई और जो मैं अक्सर हर मंदिर में अर्ज करता हूँ हर साल की, शादी के लिए रिश्ता गया, रिश्ता मंजूर। अब जाहिर बात है अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता था। दुनिया का कौन बाप है जो अपनी बेटी अली के साथ न ब्याह दे। जब गया तो उधर का मंजर ये था कि बेटी माँ से कह रही है कि माँ जान आपने मदर कह आज के रात में आप देखा ये चांद का टुकड़ा है जो हमारे आंगन में उतर के हमारी आगोश में आ गया। क्या कहने। और जब बात हो रही थी उसी में जनाब अकील रिश्ता लेके पहुंच गए। माँ ने अपने शौहर से बताया कि बेटी ने आज ये ख्वाब देखा है, जो कह रहे हैं कि ऐसा आज मैंने ख्वाब देखा है कि जैसे चांद का एक टुकड़ा हमारे आंगन में उतरा है और वो फिर मेरी आगोश में आ गया। उधर जनाब अकील का रिश्ता पहुंच गया और जब जनाब अकील ने रिश्ता दिया तो पूछा तो बताया कि कलाबिया खानदान है, उनकी शुजात का वो बेमिसाल है, बड़ा
गरीब लोग हैं, बड़े सजा और बड़ा साहिब हया हैं, उस खानदान में आप रिश्ता कर लीजिए तो आप बिस्मिल्लाह आप लेके जाइए। जनाब फातिमा कलाबिया का रिश्ता किया। जब बाप घर में दाखिल हुआ तो कहा तुम्हारे बेटी तुम्हारे ख्वाब की ताबीर घर करके आ गई। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने से जो मांगा था, मैदान में किसी घर में सब काले काले हो और कोई सांवला पैदा हो जाए तो उसको अगर चांद का टुकड़ा कहे तो समझ में आता है। अब वो पूरी तफसील में हम नहीं करना चाह रहा, बस इंतजार में आपके खिदमत में रखते थे। इसमें कोई जनाब हाशिम का हुस्न का क्या आलम था, कोई कमरे बतहा कहा गया है, कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात चल कर जनाब कासिम के लिए फौज ने कहा ऐसा लग रहा था जैसे चांद का टुकड़ा है जो चला रहा है हमारी तरफ। जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन की कुर्ब का क्या नाम कि जो जनाब यूसुफ ने कहा कि जुलेखा से अगर काश जमाल मोहम्मद देख लेती तो तेरा क्या हश्र होता, तो कहा था जब जन्म देखा नहीं था तब ये हालत थी कि वो दिल में मोहब्बत कर गई। और फिर मौलाए कायनात जनाब हाशिम जनाब अब्दुल्ला और जनाब अब्दुल्ला के लिए लिखा है जनाब हाशिम के लिए कि कई औरतें यूसुफ के गम में उनको देख के तो कई औरतों ने अपनी उंगली काटी थी, मगर गालिबन जनाब अब्दुल्ला जनाब हाशिम अब्दुल्ला के रिश्ते का जब पता चला कि हो गया आमना से तो 40-50 औरतों ने दम तोड़ दिया था कि हमारा रिश्ता क्यों ना हो पाया। एक जरूर पढ़िए मोहम्मद वाले कर दूंगा आपकी खिदमत में। तो कोई मिसबाह हरम है, कोई कमरे बतहा है, कोई कुछ है, किसी बड़े बड़े अल्ताफ से जो हुस्न जमाल में अपने जमाने में बेमिसाल है, उस घराने के अंदर अगर कोई कमरे बनी हासिम हो जाए तो ये मामूली बात नहीं है। वो बच्चा कितना खूबसूरत होगा, अच्छा मांगने वाला कितना अजीम है, और मांगा किससे है। जब अल्लाह ने अता किया तो अली के हिसाब से बेटे को अता किया। जो आदमी जिस हैसियत का होता है उसी हिसाब से जब बड़े से तोहफा मांगता है तो आदमी उसी हैसियत से उसके लिए तो तोहफा भेजता है। अब अल्लाह से अमीरुल मोमिनीन मांग रहे हैं, अली जो कायनात में जिसको सब कुछ अल्लाह ने अता कर दिया है, अब उसके बाद एक बेटा मांग रहा है। उस बेटे को क्योंकि बात करता करता भी दूर तक जाएंगे, उस बेटे को 24 हिजरी या 25 हिजरी 25 से 26 हिजरी में विलादत हुई है। अब 36 और 37 हिजरी में जंगे सिफ़ीन हुई। उन्होंने जंग कौन तालीम करा रहा है? मौलाए कायनात। भाई बेटा है तो मांगा किस लिए है? इसीलिए कि शुजा बहादुर हो। कल मेरे लाल हुसैन का जैसे हम रसूल का कुव्वत बाजू है वैसे मेरे बेटा हुसैन का कुव्वत बाजू हो, तो जाहिर सी बात है ऐसा बेटा जब मांग लिया अल्लाह से, अब उस बेटे की तैयारी कितनी कराई होगी अली ने। अब लेके सिफ़ीन के मैदान में जब पहुंचे तो मौलाए कायनात की तलवार के सामने माविया का लश्कर बेबस हो चुका था और ज़रबत हैदरी का दबदबा चारों तरफ मैदान में छाया हुआ था। कोई आदमी मैदान में निकलने के लिए लश्कर तो तैयार न था। अब एक चीज़ और कर दूँ अज़ीज़ान निगरानी, थोड़ा सा वक्त आपका ले लूँगा। नामनेट तो 14 है, उसमें न 13 किए जा सकते हैं न 15 किए जा सकते हैं, मगर रह गया इस्मत का मामला। क्या कहने, 14 में तो दाखिल नहीं है। अब तारीख का एक छोटा सा वाक़या आपके समझ में, क्योंकि यह वक्त आपकी तरफ से ले रहा हूँ मैं, वक्त काफी हो गया। जब रहमतुल्लिल आलमीन की वफात शहादत हुई, हम तो वफात कहते हैं, शहादत हुई, रह दिया गया था, खुली बात है। और मामला हुआ मीरास का। रसूल के चचा अब्बास आए और कहा या अली रसूल की मीरास मुझे दे दीजिए। कहा ठीक है चचा ले लीजिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह की अबा पहना दी उनको, रसूल अल्लाह का अमामा लगा दिया, रसूल अल्लाह की जरा पहनाई और रसूल अल्लाह की तलवार लगा दी और ऐसा हाथ में पकड़ा दिया और नाका सामने रख दिया। अब जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास उठना चाहते हैं तो इस लिबास को पहनने के बाद अब्बास उठ न सके। क्या कहने, सुभान अल्लाह। इस लिबास पहन के अब्बास उठ न सके और जब उठे नहीं
तो रसूल मौला कायनात ने पहले अमामा उतार लिया, अब भी न उठ पाए, तो ज़रा उतार ली, अब भी न उठ पाए, रिदा उतार ली, तब भी न उठ पाए, कबा उतार ली, तब भी न उठ पाए, तलवार निकाल ली। अब जब तलवार सारे तब मुलुकात पैगंबर उनके जिस्म से जुदा हुए, तब उठ के खड़े हो गए। कहा अच्छा अब कुछ नहीं मिला तो घोड़ा ही ले लीजिए आप, रास्ता रसूल का नाका। अब अब्बास जब करीब पहुंचने लगे तो नाका सवारी भड़क गई, अनकरीब भके अब्बास को हलाक करके रखते। अब्बास ने कहा मासूम का तरका गैर मासूम ले ही नहीं सकता है, वो मासूम ही का हक होता है। सुभान अल्लाह। सिफीन के मैदान में क्या कहने मेरे मौला लेके गए और ले जाने के बाद अच्छी खासी उम्र के अली 13-14 साल के जनाब अब्बास अपनी रिदा बबली ने पहनाई, क्या अपना मामा सर पे रखा। मासूम का तबरुकात गैर मासूम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्या कहने मोहम्मद वाले मोहम्मद लिबास चेंज किया, अब्बास को अपना लिबास पहनाया, पहना के घोड़े पे सवार किया, चेहरे पे नकाब डाल दी, कहा जाओ मेरे नाल। अब जब अब्बास है समझ गए, पूछा कि मासूम का लिबास भी गैर मासूम इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये अल्लाह और अल्लाह ने किया, अमीरुल मोमिनीन की तमन्ना थी, इसे मासूम न समझना भी खता है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। उस दर्जे पे नहीं, मैंने आपकी खिदमत में उस दर्जे पे नहीं है, उस दर्जे पे अब्बास ने अपने को रखा ही नहीं है। जिस तरह रसूल की गुलामी पे जिंदगी भर अली फक्र करते रहे, इसी तरह हुसैन की गुलामी पे अब्बास फक्र करते रहे। मोहम्मद वाले मोहम्मद पूछ लिया माँ ने एक दिन कि बेटा ये बताओ कि तुम दिन भर हुसैन को आका आका कहते फिरते हो, कितने तरह में तुमको खरीदा है। पलट के मुस्कुरा के माँ को देखा, कहा आप भी तो मेरी जद्दा की तारीफ करते हुए सकती है, बताइए रसूल की बेटी ने आपको कितने में खरीदा था, जितने में हुदा ने खरीदा था उतने में हुसैन ने मुझे खरीदा है। झूठ पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर की बात नहीं क्योंकि अक्सर बोलती थी, इसके बाद हजरत के है नमाज के फौरन बाद, तो उसमें आप आगे की बात है इंशाल्लाह उसमें। अब जब पहुंचे सिफीन के मैदान में, अब ज़रबत अमीरुल मोमिनीन ने जो हमला किया था तो उसका लश्कर शाम पे गहरा असर हुआ, कोई मैदान में आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब जब इस जवान को तैयार करके अली ने भेजा और खुद अब जंग देखिए, अब वो तो पूरा लश्कर उश्कर सब जंगे पुरानी दिखाई जाते तो अंदाजा लग जाएगा कैसे। उधर लश्कर खड़ा है, इधर ये लश्कर खड़ा है, इधर से सिपाही निकल रहा है, उधर से सिपाही निकल रहा है, मैदान में आके दोनों भीड़ रहे हैं। अब दोनों, अब जो शहीद हो मारा गया उसके लश्कर वाले उसकी लाश उठा ले जाते थे और दूसरा मध्य मुकाबिल में आ जाता था। अब इधर दोनों लश्कर खड़े हुए हैं, अब इधर से एक जवान निकल के आ रहा है। अब जब जवान निकल के आया, अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे को तैयार कर दिया। अब तैयार करने के बाद भेज दिया, और भेजने के बाद जब पहुंचे, अब जो नहर के दरिया पे कब्जा किया था पानी पे, और ये भी नहर फुरात है, इधर करबला है उधर सिफीन, प्रवासी बात का मामला है। वहीं पे पहला, इसके बाद यजीद के बाद मुआविया ने पहले कब्जा किया था नहर पे, उसमें भी हाथ था। अब अज़ीज़ान ग्रामी, जब दोनों अब मैदान में निकले और रजस पढ़ा तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि निकल के आ जाए सामने। उसने आवाज दी अपने शासा को, मुआविया ने कहा इब्ने शासा जा इस जवान के मुकाबले में। कहने लगा ये तो कोई मामूली पहलवान मालूम होता है, मैं इतना बड़ा पहलवान इसके मुकाबले में कहाँ जाऊँ, मेरा बड़ा बेटा चला जाएगा। जब बड़ा बेटा आया और ये नेज़ा हिलाते हुए छोटे हजरत मैदान सिफीन में आए थे। अब जब आए और आने के बाद उसने कहा मेरा बड़ा बेटा इससे मुकाबला कर लेगा, वो इसका काम वही तमाम कर देगा। बड़ा बेटा आया, वार का एक दो रद्द बदल हुए, वासले जहन्नम कर दिया। रवायत ने लिखा है कि इब्ने शासा के 7 बेटे थे सिफीन के मैदान में, और एक एक आता गया और अली का शेर उन्हें चुन चुन के अपनी पोटली में भरता चला गया, अली वासले जहन्नम करता चला गया। अब जब 7 दागे तो हजीमत उठा चुका इब्ने शासा, अब सोचिए जिसके 7 बेटे मर गए हो उसकी हालत क्या होगी। मस्त हाथी की तरीके से झूमता हुआ निकला
और आते ही सीधे देख बगैर सोचे समझे जवान के ऊपर नेज़े से हमला कर दिया। एक बार जो दस्तूर था कि आए मुकाबले में खड़े हुए, रजत पढ़ा, फिर दोनों तैयामादा हुए, फिर जंग शुरू हुई, उसने आते ही नेज़ा मार दिया। और जैसे नेज़ा मारा वैसे अली का शेर थोड़ा सा सरका और नेज़े को अपनी तलवार से जो वार किया तो नेज़ा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब जब नेज़ा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो पलक झपकते ही अली के शेर ने दोबारा वार कर दिया। अब जब वार किया तो दोनों तरफ का लश्कर देख रहा है कि हुआ क्या। एक वार तो चला, नेज़ा कटा, उसी असना में दूसरा वार भी चल गया। यहाँ इतनी तेज काम हुआ कि आदमी लोगों की नजरें धोखा खा गई कि नेज़ा पहले कटा है कि आदमी पहले बना है। अरे पता ही नहीं चला कि इब्ने शासा का हुआ क्या। जब घोड़े ने 4 कदम आगे बढ़ाए तो वो आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा। अब जब ये मंजर देखा तो जिन्होंने अली की जो लश्कर में मौजूद थे तो दोनों लश्कर से आवाज आने लगी, हाजा अलीउन, हाजा अलीउन, हाजा अलीउन। ये अली लड़ रहा है, कोई दूसरा नहीं लड़ रहा है। क्या कहने। जब ये मंजर अली ने देखा, अब इधर अली भी नकाब डाले खड़े, उनके लश्कर वालों को भी पता नहीं कि मौला कहाँ पे है। तब अली मैदान की तरफ अपने घोड़े को बढ़ा के निकले और आने के बाद अपने बेटे के बराबर खड़े हुए। खड़े होने के बाद बेटे को करीब बुलाया, फिर नकाब को उल्टा, नकाब को उलट के पेशानी का बोसा दिया और कहा कि हाजा कमरो बनी हाशिम, ये अली नहीं लड़ रहा है बल्कि बनी हाशिम का चांद जंग कर रहा है। क्या है अब्बास। अज़ीज़ान गिरामी, जिसका अल्लाह ने इतनी कुव्वत और ताकत अता की हो, किसी इंसान को अल्लाह ने ताकत अता की है, अगर कोई वक्त मुसीबत हो तो लड़के मर जाना तो गवारा करेगा, मगर मुसीबतों को इस तरह झेलना गवारा नहीं करेगा जिस तरह अब्बास ने बर्दाश्त। अपने आका के सामने सर तस्लीम को हमेशा कम रखा। कहीं ऐसा नहीं था मदीने से लेकर करबला तक, क्योंकि अभी बहुत रवायतें हैं पढ़ने के लिए। एक छोटी सी रवायत सुन लीजिए कि मदीना है, मस्जिद नबवी में मौला कायनात बैठे हैं, वो आका हुसैन बैठे हैं। आका हुसैन ने प्यास का इजहार किया और जब प्यास का इजहार किया तो मौला कायनात जब तक किसी से कहते कहते तो क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपने सर पे वो कासे आब रखे हुए जल्दी जल्दी दौड़ता चला रहा है, क्योंकि गरीबी में तो घर था, जल्दी जल्दी चला रहा है, जिसकी वजह से जो पानी छलक रहा है तो उससे पूरा कुर्ता भीग रहा है। ये मंजर जब मेरे मौला ने देखा तो आंखों से जारी हुए। कहने वालों ने पूछ लिया, मौला अरे ये तो बड़ी खुशी का मौका है, एक भाई अपने भाई से इतनी मोहब्बत करता है कि इधर हुसैन के दहन से पानी का लब निकला, इधर अब्बास पानी ले क्या गए। मेरे मौला ने फरमाया कि जो मंजर मेरी आंखें देख रही तुम नहीं देख रहे हो, अरे आज अब्बास का कुर्ता पानी में तर हो रहा है, अरे यही मेरा अब्बास करबला में सबीले आपकी ले जाएगा और इसका कुर्ता खून में तर हो जाएगा। जिसकी हैबत के आलम था कि खत भेज दिया तो लाखों के लश्कर की हिम्मत न हुई कि उस खत को अबूर कर ले। 9 मुहर्रम की रात गुजरी, ज़ुहैर कहते हैं आगे बढ़ाए घोड़े को, कहा है फरजंदे अमीरुल मोमिनीन, मैं तुमसे एक हदीस बयान करूँ अपनी देखी हुई। कहा ज़ुहैर जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो वक्त हाथ से चला जाए। क्या आका ये समझ जानते हो मेरा मौला ने तुम्हें किस दिन के लिए ज़ख़ीरा किया था, अपने खुदा भाई से रिश्ता दिलवा के अपने खुदा से तुमको क्यों मांगा था। मौला एक आका अब्बास एक बार कांपते लगे अपने दरबार से, कहते लगे ज़ुहैर तुम ऐसे नाजुक वक्त में मुझे जोश शुजाअत दिला रहे हो, अरे कल सुबह होने दो तो आका से इजाजत मिल जाए, फिर बताऊंगा कि जंग किसे कहते हैं। मगर हाँ है अब्बास के बाजुओं की मछलियां फड़क फड़क के रह गई। वो अब्बास जो अपनी भतीजे को जान से ज्यादा चाहते थे, वो भतीजी अपने चचा के सामने और लटक की सदाएं बुलंद कर रही थी। अब्बास अपने आका के उनके सामने मजबूर सर को झुकाए खड़े थे। जब वो वक्त आ गया तमाम तफसीलों को तफसील को छोड़ते हुए कि अब्बास ने अपने तीनों भाइयों को भेज दिया कि आगे बढ़े, आका मरजन में जाने की इजाजत दे दीजिए। एक बार मजलूम करबला ने अपने भाई को
नजर भर के देखा, कहने लगे मेरे भैया अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलामदार हो। कहा आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार था। चार लश्कर चला गया, वही अलमदार भी जाना चाहता है। ये गुफ्तगू हो रही थी कि उधर बच्चों का एक झुंड अपने हाथों में खाली कूदा लिए हुए और लटाख हाय प्यार मुझे मारे डालती है, हाय प्यार मुझे मारे डालती है। कहता हुआ निकला। इमाम ने फरमाया है भैया अब्बास मैदान में जाना है तो चले जाओ, मगर इन बच्चों के लिए कुछ सबीरा आप करते जाओ। अब्बास ने अपनी भतीजी को आवाज दी, ऐ मेरे लाल सकीना मेरे पास आओ। जनाब सकीना दौड़ती हुई आई, कहा जाओ जल्दी से मस्क ले आओ, आका ने हुक्म दिया है मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहा हूँ। और कहा अब्बास जरा खैमे में सबसे मिलने जाओ। अब जब अब्बास खैमे में आए सानिया जहरा के करीब बैठ गए। कहा शहजादी हम मैदान में पानी की सबील के लिए जा रहे हैं। शहजादी ने कहा भैया अब्बास तुम मैदान में जा रहे हो, अब एक बात सुन के चले जाओ। कहा क्या? कहा कि जब 19 रमजान की सुबह हो रही थी तो मैं अपने बाबा के सराहने बैठी थी कि अचानक हवा का झोंका चला, रिदा मेरे शानों से हट गई। मेरे बाबा ने मेरे शानों का बोसा लिया और कहने लगे, मैंने पूछा बाबा आपने मेरे शानों का बोसा क्यों लिया? कहा मेरे लाल ज़ैनब एक वक्त वो आएगा कि इसी बाजुओं में निस्मान जुल्फ़ बांधी जाएगी। मैं सोचती थी कि बाबा ने कहा है वो बात हो तो हो के रहेगी, मगर ये मैं सोचती थी कब होगी। जिसका एक भाई भी होता है तो उस बहन को बड़ी ढारस होती है, और मेरे 18 भाई है उसमें मेरा अब्बास जैसा भाई मौजूद है। ये वक्त कब आएगा? ए भैया मुझे अब्बास अब मुझे यकीन हो गया जो बाबा ने कहा था, अब मेरे बाजुओं में निस्मान जुल्फ़ बांधी जाएगी। जज़ाकुम रब्बुकुम कसम कर दिया आपकी दे दीजिए बीबी ज़हरा को उनके इस्लाम का कुर्ता, जिसका कुर्ते का इंतजाम सैयदा जाने से पहले करके गई थी, जिसे अपना बेटा सैयदा ने कहा है। अज़ादारो जिसे सैयदा अपना बेटा कहे उसकी मंजिलत के बारे में हम क्या बयान कर सकते हैं? उसके फज़ाइल और कमालात जो अली की तमन्ना हो। अब्बास उठे, बीवियों से ज़हरा ने कहा कि बीवियों जो मैंने आपसे वादा किया था कि तुम्हारे चादर की जमानत में लेती हूँ, तो जिसके भरोसे भी किया था वो मेरा भैया मैदान में जा रहा है, मैं अपने माहिते वादे को वापस ले रही हूँ। अब सबकी चादरें छीन ली जाएंगी, अब बाजुओं में रस्म बांध दी जाएगी। अब्बास निकले, निकलने के बाद आका की खिदमत में आए। भतीजे ने मश दिया, जब निकल रहे थे तो देखा कि ज़ौजा दरे खैमा पे खड़ी थी। ज़ौजा शौहर मैदान कारज़ार में जा रहा है। अब्बास ने पलट के अपनी ज़ौजा को देखा और कहा मोमिना तुझसे मेरी एक ख्वाहिश है। ज़ौजा अब्बास ने हाथों को जोड़ दिया, मेरे सैयदा सरदार अब मैं मैदान करबला भी किस लायक हूँ? आप तो मैदान कारज़ार में जा रहे हैं। कहा नहीं, मेरे आका की शहादत के बाद जालिम खैमों में आग लगा देंगे और मेरी शहजादियों की चादर छीन लेंगे, तो जालिमों से कहना कि मेरे शहजादी को भी रात बेदिता न करे, तुम बढ़ के अपनी चादर को दे देना, मेरी शहजादियों के पर्दे को न बात बचा देना। हाय मेरा मजलूम आका, जाते जाते ख्याल है तो आका का और आका शहजादी का ख्याल। भतीजी ने मश्क में बांधी और उसके बाद